Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the second chapter in geography, and the name of the chapter is Globe, Latitude, and Longitude. And in the previous classes, we have done latitude. We have seen that the latitude is an imaginary line. Actually, it's in a form of circle. These are parallel circles from the equator up to the poles. In the northern side, it is up to the north pole, and in the southern hemisphere, it is up to the south pole. And we have also seen that latitudes are measured in angles. Okay, and we have seen that latitudes are very much important to locate any place, and there are three important, not three, actually there are four important latitudes. The first is Tropic of Cancer, whose value is 23.5 degree north. Then Tropic of Capricorn, its value is 23.5 degree south. Then Arctic Circle, its value is 66.5 degree north. And then Antarctic Circle, the value of Antarctic Circle is 66.5 degree south. So these are the four most important latitude, and accordingly we see that there are three heat zones on the earth. The first is torrid zone. The torrid zone lies between 23.5 degree north to 23.5 degree south. Okay, in this torrid zone, what happens that the ray of the sun falls directly on any of the on all latitudes once a year. साल में एक बार किसी न किसी एक लैटिट्यूड पर सन का रे जो है वो स्ट्रेट फॉल करता है बिटवीन 23.5 degree नॉर्थ टू 23.5 degree साउथ, एंड दैट इज वाई इन दिस रीजन द टेम्परेचर इज highest. This is the most hot. This is the hottest region of the earth. This is called torrid zone. Okay, and then we have seen from 23.5 degree north to 66.5 degree north, and in the southern hemisphere from 23.5 degree south to 66.5 degree south there is temperate zone. This temperate zone is that zone on which the sun rays never falls directly. The rays of the sun are always slanting, and on all 365 days the rays of the suns are falling slanting, and that is why this region receives lesser sunlight, and the temperature is also less. So this is the reason where temperature is moderate. गर्मी बहुत कम होती है, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं. एंड देन कम्स द फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन जो है वो हमारे जो दोनों पोल्स है वो जो बिटवीन आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल यानी कि 66.5 degree नॉर्थ से 90 degree नॉर्थ के बीच का जो पोर्शन हुआ, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन हुआ, और सदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 degree साउथ से 90 degree साउथ के बीच का जो पोर्शन हुआ, दैट इज फ्रॉम दिस अंटार्कटिक सर्कल टू द साउथ पोल. ये जो रीजन है यहाँ पर सन का रे जो है वो बिल्कुल भी कभी भी सन का रे यहाँ पर हॉराइजन से ऊपर पहुँच ही नहीं पाता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि सन जो है वो स्फेयर है, और जो डिस्टेंस है सन अर्थ स्फेयर है, और जो सन का डिस्टेंस है उसकी वजह से केवल बीच का जो अर्थ का पोर्शन है वहीं पर सीधी लाइन पड़ती है, और जैसे जैसे ऊपर और नीचे अर्थ के हम देखेंगे स्लैंटिंग होता जाता है, और पोल्स पे तो ये बिल्कुल होराइजन के ऊपर जाता ही नहीं है. इस कारण से यहाँ पर ठंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत टू मच कोल्ड होता है, और इसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं. We have discussed up to this, and now we will be discussing longitudes. What are longitudes? क्या होते हैं longitudes? Just like latitudes, longitudes are also imaginary line which are drawn from north pole to south pole या south pole to north pole. Vertical lines, जैसे हमने देखा था जो latitudes थे, they were horizontal lines, है ना. ये horizontal lines थे जो कि इक्वेटर के पैरेलल में सर्कल्स बने हुए थे. दीज आर हॉरिजॉन्टल लैटरल लैटिट्यूड लैटरल लाइंस. और लॉन्गिट्यूड
Longitudes are from, these are drawn like this. ओके इस तरह से जो इमेजिनरी लाइन होती है उसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड. ओके सो व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड्स आर, so these vertical lines are called meridians of longitudes. Okay, now the question is, we will see why, what is the need of longitude. हम क्यों longitude draw करते हैं, हमें longitude ड्रॉ करने की ज़रूरत क्या है? Why we are imagining these lines? The need to draw these imaginary lines is for location of the places. As we have seen earlier also when we were discussing latitude, we have seen that these latitudes are important to locate any place. In the similar way, longitudes are also important to locate any place. They play their role in locating. That is why we draw these lines, है ना? So what is how it help them, how it help us in location of any place. Like there is an example like Tonga Island. Tonga Island is in the Pacific Ocean. Okay, Tonga Island. Where is it? It is in Pacific Ocean. Okay, and there is another island, Mauritius Island, which is in Indian Ocean. Okay, एक और island हम देख रहे हैं, Mauritius. This Mauritius Island is in the Indian Ocean. Okay. अब ये जो दोनों आइलैंड हैं, both these islands, Tonga and Mauritius, both these islands are located on the same latitude. The latitude is 20 degree south. ठीक है, 20 डिग्री साउथ पे दोनों ही जो है वो सिचुएटेड है. इसको आई विल बी ड्रॉइंग इट. सपोज ये हमारा 0 डिग्री है और इसको हमने मान लिया 20 डिग्री साउथ. ये दिस इज 20 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 60 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ. ओके, दिस इज 90 डिग्री साउथ, दिस इज 60 डिग्री साउथ. ठीक है, these are latitudes. Okay, अब हमारे पास एक we have this information that these two islands are there, Tonga and Mauritius. Both these islands are on the 20 degree south latitude. ये दोनों 20 डिग्री साउथ पे सिचुएटेड है. कहाँ नहीं जानते, ये कहीं भी हो सकते हैं. ये पूरा जो लैटिट्यूड है 20 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, इसमें ये कहीं भी हो सकते हैं. कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर है या यहाँ पर है या कहाँ पर है? एग्जैक्ट लोकेशन. हाउ विल वी नो द एग्जैक्ट लोकेशन? दिस इंफॉर्मेशन इज हाफ इंफॉर्मेशन about the location of the place. If we want to locate Tonga Island, and it is given that Tonga Island is situated on the 20 degree south latitude. So this is 20 degree south latitude है. ये जो है ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है. अब इस 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में कहाँ पर टोंगा आइलैंड को हम लोकेट करें? वी डोंट नो. मॉरिशस आइलैंड इज ऑल्सो ऑन 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. अब मॉरिशस कहाँ है, टोंगा कहाँ है? हाउ विल वी नो? यही जानने के लिए exact location, as I told you when we were discussing latitude, I told you that these latitude help us in locating the place, but
we are not able to know the exact location only by knowing the latitude. In order to know the exact location, or in order to locate any place exactly, we need longitudes also. We need the information about longitudes also. That is why we need longitude, है ना. लैटिट्यूड का जो नॉलेज हमें इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उससे हम किसी भी प्लेस को, एज वी आर सेइंग टोंगा भी हमारा 20 डिग्री पे है, मॉरिशस भी 20 डिग्री पे, कैसे हम लोकेट करें, कहाँ लोकेट करें, इसीलिए हमें लॉन्गिट्यूड की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अभी वो धीरे धीरे एक इससे ग्रिड बन जाता है, उसका अभी समझ में आएगा. तो हमने ये समझ लिया कि लॉन्गिट्यूड होता क्या है. एक तो वर्टिकल लाइंस होते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, जो भी वो दोनों पोल्स को मिलाने वाले जो इमेजिनरी वर्टिकल सीधी लाइन, मतलब इट्स नॉट हॉरिजॉन्टल, ये सीधी लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड. ठीक है, और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. और इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि हमको प्लेस को एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए सिर्फ लैटिट्यूड का नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है, दैट इज इनसफिशिएंट. ओके, और जो लॉन्गिट्यूड्स जो हमने ड्रॉ किया है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये तो एक अर्थ का जो शेप है उसको आपको ध्यान में रखते हुए समझना है. इट इज स्फेरिकल, है ना. तो ऐसे जो लाइंस ड्रॉ हो रही है वो इस तरह से कर्व्स में ड्रॉ हो रही है. और जो दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज मेजर्ड इन डिग्री. जैसे कि हमने लैटिट्यूड में भी देखा था, उसको जो हम मेजर करते हैं डिग्री में मेजर करते हैं. इन द सिमिलर वे लॉन्गिट्यूड्स के बीच का भी जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिग्री में ही मेजर करते हैं. ठीक है, और फिर डिग्री को भी आगे हम डिवाइड करते हैं, डिग्री को भी आगे मिनट्स में डिवाइड करते हैं, मिनट्स को सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं. ओके, तो इस तरह से अगर हम लॉन्गिट्यूड्स को देखें तो इसका शेप कैसा होता है, इट इज सेमी सर्कल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ. जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, सेमी सर्कल, है ना. इसको अगर हम ड्रॉ करें, तो अगर ये नॉर्थ पोल है अर्थ का, है ना, और अगर ये साउथ पोल है, तो जो हमारा मेरिडियन होगा, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड होगा, वो कैसे ड्रॉ हो रहा है, ऐसे, है ना, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. फिर जो दूसरा नेक्स्ट ड्रॉ हो रहा है वो ऐसे 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 कर करके ये ड्रॉ होता है. तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है, वो मिल जाते हैं. जब जैसे ये अगर हम इसके साथ ही साथ ठीक है, दीज आर द लाइंस. तो जैसे हम पोल्स की तरफ, इसकी जरूरत तो सिर्फ ये समझने के लिए थी कि हाफ सर्कल होता है ना, ये हम समझ लिए कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सेमी सर्कल होते हैं. अब दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वेटर पे हाईएस्ट होता है, इक्वेटर पे उनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है. और जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ बढ़ते हैं उनका डिस्टेंस कम होता जाता है, और जब पोल्स पे वो पहुंच जाते हैं तो सब मिल जाते हैं, क्योंकि ऑल द लॉन्गिट्यूड्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पोल्स ओनली. तो इक्वेटर के पास उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ऊपर जाते जाते कम होता जाता है, और नॉर्थ पोल पे वो मिल गया. इसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर पे, और जैसे जैसे वो नीचे आते हैं, साउथ पोल पे आएंगे, वो कम होते जाते हैं, और साउथ पोल पे आके वो पूरी तरह से मिल जाते हैं. ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनका लेंथ सेम होता है. जैसे हमने लैटिट्यूड में क्या देखा था कि जो लैटिट्यूड्स में हमने देखा कि जो इक्वेटर है उसका लेंथ सबसे ज़्यादा होता है ना. उसके बाद जो लैटिट्यूड्स बनते हैं, जो लैटिट्यूड्स खींचे जाते हैं, वो छोटे होते जाते हैं. यू रिमेंबर ना, जो हमने लैटिट्यूड्स देखा था उसमें हमने क्या देखा, जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है वो कौन होता है, इक्वेटर.
और उसके बाद जितने भी लैटिट्यूड्स हम खींचते जाते हैं वो छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, यहाँ पर जाकर बिल्कुल छोटे हो जाते हैं पोल्स पे, है ना। इसी तरह से नीचे भी वही सेम कंडीशन प्रिवेल करती है। तो लैटिट्यूड्स आर नॉट ऑफ सेम, उनकी जो लेंथ होती है लैटिट्यूड्स की वो सेम नहीं होती है ना। इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है, उसके बाद सब छोटे होते जाते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो सारे सेम होंगे क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ऑल आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन पोल एंड एंडिंग एट अनदर पोल, स्टार्टिंग फ्रॉम वन पोल एंडिंग एट अनदर पोल। तो एवरी लॉन्गिट्यूड इज सेम इन लेंथ, ठीक है। तो अब जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका नंबर सेम होता है और इनके बीच में बहुत सारे खींचे जा सकते, इस तरह के जो लाइंस हैं वो बहुत सारे खींचे जा सकते हैं। इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं 360 डिग्री। जैसे कि यहाँ पर आप जानते हैं एक जो सर्कल होता है उसमें उसका कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो नॉर्थ पोल है इससे 180 इधर और 180 उधर, जो हाफ सर्कल में 180 लॉन्गिट्यूड्स हुए और इधर के पीछे के हाफ सर्कल में 180 लॉन्गिट्यूड्स हुए। तो इस तरह से 360 लॉन्गिट्यूड्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन दोनों के बीच में भी एक खींचा जा सकता है, जैसे हमने लैटिट्यूड्स में भी देखा था, है ना, हाफ डिग्री का भी खींचा जा सकता है। तो ये आपको समझना है कि जो मेरिडियन है उसमें कोई इस तरह का, जैसे हमने इक्वेटर में देखा, लैटिट्यूड में देखा कि 0 डिग्री इक्वेटर जो है वो बीचों बीच से काट रहा है, तो दो इक्वल हाफ्स में बट रहा है। लेकिन यहाँ पर उस तरह की बात नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑल मेरिडियन ऑफ लैंग्वेज आर सेम इन लेंथ। तो इसमें क्या हुआ, जो सारी कंट्रीज थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो काउंटिंग जो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, वन किसको माने, इसको माने, इसको माने, इसको माने, किसको माने, वो विल बी कंसिडर्ड एज 0, 0 से 1, 1 से 2, 0 डिग्री होगा ना, जो बिल्कुल जहाँ पर कोई भी डिस्टेंस नहीं है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, वो 0 डिग्री होगा। फिर उधर 1, 2, 3 को किसको हम माने, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें, 0 डिग्री किसको माने, ये सोचना पड़ा। क्योंकि इसमें नहीं सोचना था, इसमें आपको 0 डिग्री मिल गया, इक्वेटर जो है वही 0 डिग्री है ना, क्योंकि उसके ऊपर नीचे दोनों इक्वल हाफ है। अब लॉन्गिट्यूड को आप जहाँ किसी भी एक लॉन्गिट्यूड को अगर आप कंसिडर करिएगा तो क्या हो जाएगा कि उनके बीच में साइज का कोई डिफरेंस नहीं है, लेंथ का कोई डिफरेंस नहीं है, तो किसको 0 माना जाए ये समझना मुश्किल हो रहा था। तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो ये काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो हम उस मेरिडियन से स्टार्ट करेंगे जो मेरिडियन ग्रीनविच को क्रॉस करती है। अब ये ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच इज अ नेम ऑफ द प्लेस। कहाँ पर है, ये लंदन में है। और इसी ग्रीनविच में क्या लोकेटेड है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ग्रीनविच जहाँ पर कि ये लंदन में है। ग्रीनविच क्या है, इट्स अ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एकदम इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्रीनविच जो है वो एक प्लेस का नाम है और ये जो ग्रीनविच है ये कहाँ पर है, ये लंदन ब्रिटेन में है ना, ब्रिटेन जो है वहाँ पे ग्रीनविच है। और इसी ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जो कि बहुत ही फेमस रॉयल ऑब्जर्वेटरी है पूरी दुनिया का, ठीक है। अब ये जो ग्रीनविच जो प्लेस है वहाँ से जो मेरिडियन क्रॉस कर रही है वो मेरिडियन जो है वो क्या हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इस ग्रीनविच से जो मेरिडियन क्रॉस करेगी उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ओके। और उसकी वैल्यू कितनी है, वहां से हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें, वी आर स्टार्टिंग काउंटिंग। 0 कहाँ है, 0 है उस लॉन्गिट्यूड को हम 0 मान रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम 0 मान रहे हैं जो ग्रीनविच से क्रॉस कर रही है। ग्रीनविच कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन को ही यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, यूके, ठीक है। तो ग्रीनविच से जो लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रही है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। और
इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू है 0 डिग्री। 0 डिग्री इज इट्स वैल्यू। ओके, अब हम यहाँ से 0 डिग्री सपोज करें, हम ऐसा मान लेते हैं कि दिस इज 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री है, बिल्कुल बीचों बीच में हमने जिसको खींच रखा है ये 0 डिग्री है, और ये ग्रीनविच से क्रॉस कर रही है। यहाँ पर कहीं सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पे ग्रीनविच है, इससे क्रॉस करने वाली ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे ईस्ट और इसके वेस्ट में हम 180 डिग्री काउंट करेंगे। इसके ईस्ट में क्या होगा, इधर ईस्ट इधर हो गया है ना, और इधर क्या हो गया, वेस्ट। तो इसके ईस्ट में 180 जो है इसके ईस्ट में लॉन्गिट्यूड्स होंगे। जैसे ये 1 है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसे करके 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 कहाँ जाएंगे हम, 180 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से हम वेस्टर्न साइड में भी इसी तरह से काउंट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 डिग्री वेस्ट हुआ, 1 डिग्री वेस्ट में, 2 डिग्री वेस्ट में, 3 डिग्री वेस्ट में, ऐसे करते 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 हम कहाँ जाएंगे, 180 डिग्री वेस्ट। तो ये इधर ठीक है। इसको हम बहुत सारे हम बना दे रहे हैं, वी कैन नॉट काउंट इट ना, इस पर यहाँ पर हम लोग 180 काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हमने ढेर सारा बना दिया, ठीक है। ओके, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर एक हम और बना रहे हैं, ठीक है। ये फ्रंट का व्यू है, बिकॉज हमारे पास 2 डायमेंशनल है, वी हैव 2 डायमेंशंस ओनली एंड द अर्थ हैज 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशनल फिगर हम नहीं बना सकते हैं बोर्ड पे, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉजिंग सम प्रॉब्लम, बट वी कैन डू इट, हम लोग समझ सकते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर भी ओके ठीक है। तो 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया, और ये 1 2 3 4 5 करते करते सपोज करिए कि यहाँ पर ये जो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है ये 180 डिग्री ईस्ट की होगी, ठीक है। ये इधर से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से, और 180 डिग्री। 180 डिग्री का कैसे बनता है, 180 डिग्री अगर हम एंगल बनाना चाहें तो क्या होता है, दिस इज 180 डिग्री। 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ 0 डिग्री और पीछे वाला 180 डिग्री, वो दोनों मिलके एकदम स्ट्रेट लाइन हो रहे हैं, है ना। तो ये जो 0 डिग्री हमने ईस्ट में स्टार्ट किया, ये यहाँ आकर के 180 डिग्री ईस्ट बन जा रही है, ठीक है। और जो 180 डिग्री यहाँ से हमने वेस्ट में स्टार्ट किया, यहाँ भी हमने 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट किया, ये पीछे में आकर के ये यहाँ पर ये भी 180 डिग्री वेस्ट बन जा रही है। तो ये दोनों जो है ना वो सेम है, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, बोथ दीज लॉन्गिट्यूड्स आर सेम, दोनों एक ही लॉन्गिट्यूड्स है, जो कि एक ही लॉन्गिट्यूड है जो कि 180 डिग्री ईस्ट भी है और 180 डिग्री वेस्ट भी है। तो जितने भी मेरिडियन हमने ईस्ट में खींचे हैं उनके साथ साथ हम ईस्ट लगाते हैं, जैसे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ईस्ट के लिए ई आएगा। जैसे हमने
इक्वेटर के जो ऊपर वाला जो लैटिट्यूड था उसमें एन लगाया था, और इक्वेटर के नीचे वाला जो लैटिट्यूड था उसमें एस लगाया था, है ना। तो इन द सिमिलर वे, एन वाज डिनोटिंग नॉर्थ, एस वाज डिनोटिंग साउथ। यहाँ पर हम ई लगा रहे हैं क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्टर्न डायरेक्शन में, तो ई इज फॉर ईस्ट। तो जो भी इधर के लॉन्गिट्यूड्स हमने खींचे उनके साथ सब में ईस्ट लगता गया, और ये लास्ट जो हमारा लॉन्गिट्यूड आया वो 180 डिग्री ईस्ट है। इसी तरह से जो वेस्टर्न साइड में हमने जो लॉन्गिट्यूड्स खींचा उस सब में हमने डब्ल्यू लगाते गए हम, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, ऐसे करते 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 हम कहाँ पहुंचे, हम 180 डिग्री वेस्ट पे पहुंचे। बट यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो है वो एक ही लॉन्गिट्यूड है। दीज आर नॉट टू डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स, दीज बोथ आर सेम लॉन्गिट्यूड। एंड वन मोर थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये एक्चुअली दे आर डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स vertically. Actually, these two meridians, the 0 degree meridian and 180 degree meridian, these both are dividing the whole earth into 2 equal halves. और यहाँ पर हम इसमें ईस्ट और वेस्ट कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ 180 डिग्री होगा क्योंकि ये ईस्ट भी है वेस्ट भी है ना। सो इट विल बी 180 डिग्री, इट विल नॉट बी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। अब इस 180 के जितना इधर में इस साइड में जो भी मेरिडियंस होंगे उसमें ईस्ट लगा रहेगा, और 180 के इधर में वेस्ट में जो भी मेरिडियंस होंगे उनमें डब्ल्यू लगा रहेगा। लेकिन ये जो 180 है वो ना तो ईस्ट है ना वेस्ट है, और ये 180 और 0 ये दोनों मिलकर के एक क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट सर्कल बना दे रहे हैं, और ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में बांट रहे हैं। और ये जो इक्वल हाफ्स है वो कैसा इक्वल हाफ्स है, ये इक्वल हाफ्स है, दिस इज अर्थ, ये इस तरह से बांट रहे हैं, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जो लैटिट्यूड्स थे, इक्वेटर जो था वो क्या किया, उसने अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में बांटा। लैटरल डिवीजन था ऊपर और नीचे का। ये कैसा डिवीजन है, ये लेफ्ट और राइट का डिवीजन है। जो हमारा लेफ्ट साइड हुआ दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और जो राइट साइड हुआ दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फेयर, है ना। तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। इस तरह से अगर आप इतनी चीज़ें समझ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चीज़ों को ये समझना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी आगे हम लोग देखेंगे दोनों को मिला करके, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को जब हम मिलाएंगे तब हम किसी भी प्लेस को एग्जैक्टली लोकेट कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ लॉन्गिट्यूड से या सिर्फ लैटिट्यूड से वी विल नॉट बी एबल टू लोकेट अ प्लेस। ओके, तो यहाँ पर जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जो इमेजिनरी लाइन दोनों पोल्स को मिला रहे हैं, द इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल इज नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। दीज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लोकेट एनी प्लेस, exactly locate any place. Then we will see how we measure longitudes. We measure longitudes in degree. There is another important information about longitude, that the longitudes are equal in length. All the longitudes are equal in length. They are not smaller or bigger, but they all are equal in length. And one more thing is there, that the distance between the two longitudes is highest at the equator. But when they move towards the pole, the distance between the two decreases and they all meet at the poles. ठीक है, जब वो पोल्स पे पहुंचते हैं तो वो मिल जाते हैं सारे के सारे। और यहाँ पर हमने ये देखा कि इक्वेटर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 डिग्री वो अपने आप हो गया क्योंकि वो 2 इक्वल हाफ्स में बांट रहा है, बीच से हमने उसको ड्रॉ किया। लेकिन यहाँ पर ये जो डिफरेंट कंट्रीज थे उनको आपस में मिलकर के ये डिसाइड करना पड़ा कि किस मेरिडियन को हम 0 डिग्री माने, कहाँ से, फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट द काउंटिंग, है ना। एंड इट वाज डिसाइडेड कि द काउंटिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम
ग्रीनविच विच इज़ इन ब्रिटेन, ठीक है। इसी ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। इसी को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और इसकी वैल्यू 0 है। इस 0 डिग्री से हम ईस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ 180 लॉन्गिट्यूड्स खींचते हैं। तो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो एक ही लाइन पर होता है, सेम लाइन पर होता है, और इसलिए हम उसको 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट नहीं कहते हैं, इट इज़ सिंपली 180 डिग्री। और 0 और 180 ये दोनों जो मेरिडियन है, ये दोनों मेरिडियन मिलकर के अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज known as ईस्टर्न हाफ एंड दिस इज known as western half, western hemisphere, not half, eastern hemisphere and western hemisphere. Okay, now in the next class we will understand how to locate a place exactly with the help of longitude and latitude. Okay.